हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थर्ड, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फोर्थ, स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, डिग्री एंड रेडियन। एंड फिफ्थ पॉइंट, एएसटीसी रूल। इंपॉर्टेंट रूल है एएसटीसी रूल फॉर साइन कन्वेंशन। ओके, तो आज के लेक्चर में हम पॉइंट नंबर 6 निगेटिव एंगल्स ये कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 और उसके आगे। ओके, नाउ निगेटिव एंगल्स, पॉइंट नंबर 7 निगेटिव एंगल्स। क्लियर? ओके, तो निगेटिव एंगल्स, नाउ हियर minus theta, minus 30 degree, minus 30 degree is negative angle, minus 45 degree is again negative angle, minus 60 degree negative angle, minus 90 degree negative angle, minus 180 degree negative angles. Okay, in minus 270 degree negative angle, minus 360 degree negative angle, and up to so on. Then minus 690 degree again negative angles. Okay, so negative angles minus theta, but again negative angles with trigonometric ratios. Confirm ये trigonometric ratio के साथ ही रहेंगे. Okay, now 6 trigonometric ratios, sin cos, tan cos, sec cosec. But in negative angles, only cos and sec. Now here cos and sec are positive, and others are negative, okay. बस हमें ध्यान में रखना है, इन नेगेटिव एंगल्स cos and sec, these two ratios cos and sec are positive, and others sin, tan, cot and cosec, now these are the negative. Okay, now therefore, but in negative angles, now these are the negative angles, minus 30 degree, minus 40 degree and up to minus 690 degree. Now these are the negative angles. But in negative angles only cos and sec are positive. And others are negative. Others sin, tan ratio, cot ratio and cosec ratio with negative angle, then answer is negative. Clear? Now therefore sin of minus theta equals to, now here sin of minus theta, theta with any angle, but sin of minus theta equals to, बस रूल याद करना है हमें, नेगेटिव एंगल्स ओनली cos and sec are positive and others are negative. Now therefore sin of minus theta equals to minus sin theta, cos of minus theta equals to cos theta, tan of minus theta equals to minus tan theta, then cot of minus theta equals to minus cot theta, then sec of minus theta. Now here sec of minus theta equals to sec theta, and last cosec of minus theta equals to minus cosec theta. Okay, but in negative angles only cos and sec are positive and others are negative. बस सिंपल सा ये पॉइंट है हमारा. Then negative angles, okay, with trigonometric ratio sin, cos, tan, cot, sec, cosec. अब sin of minus theta, तो suppose for example sin of minus 45 degree, now here sin of minus 45 degree, first by using negative angles. In negative angles cos and sec are positive, so sin ratio is negative. Sin of minus theta equals to minus sin theta, but now here theta is 45 degree, answer is minus 1 by root 2. उसके बाद tan of minus 60 degree, now here tan of minus theta equals to minus tan 60 degree, but again tan 60 degree equals to root 3 and up to so on. Then cos of 30 degree, minus 30 degree, cos 30 degree, then minus तो नहीं रहेगा यहाँ पे क्योंकि cos of minus theta equals to cos theta, cos 30 degree, but cos 30 degree equals to, इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड एंगल्स ये पॉइंट देखा था, उसमें सभी ये डिग्री एंड रेडियन में cos 30 degree equals to root 3 by 2, cos 30 degree equals to root 3 by 2. Similarly sec and cosec, now this one sec of minus 60 degree, but sec of minus theta equals to sec theta, sec 60 degree, but sec is the reciprocal of cos, cos 60 degree equals to 1 by 2, but reciprocal of 1 by 2 is 2. Now therefore sec of minus 60 degree equals to 2, cos 60 degree equals to 1 by 2, but sec is the reciprocal of cos,
तो sec 60 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2। सबसे पहले तो निगेटिव का रूल अप्लाई किया, निगेटिव एंगल्स ओनली cos and sec आर पॉजिटिव and others are negative. Now therefore sec of minus 60 degree is sec 60 degree, sec 60 degree equals to 2 and cosec of minus 45 degree, cosec of minus 45 degree, but cosec of minus theta equals to minus cosec theta, cosec theta, then answer is minus root 2, answer is minus root 2. Cosec is the reciprocal of sine, cosec is the reciprocal of sine, but sine 45 degree equals to 1 by root 2. Now then cosec 45 degree equals to root 2, but answer is minus root 2. Cosec of minus theta equals to minus cosec theta, answer is minus root 2. ये सिंपल सा नेगेटिव एंगल का रूल हमें ध्यान में रखना है, नेगेटिव एंगल्स, क्लियर। और इसका नेगेटिव एंगल्स कहाँ पे होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल्स, वो भी पॉइंट हम अब देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, ओके, एंगल्स in difference of, next point number 7, in difference of 90 degree or pi by 2 radian, in difference of 90 degree or pi by 2 radian, okay। तो in difference of 90 degree और pi by 2 radian, अब यहाँ नंबर ऑफ एंगल्स हो गए इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, बट ये सभी एंगल्स एक्सिस पे होते, इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 जितने भी एंगल्स अब सामने आने वाले वो सभी एंगल्स एक्सिस पे ही होंगे, एक्स एक्सिस या तो फिर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओके। नाउ हियर एक्स एक्सिस, x axis, y axis. Now right hand side positive direction of x axis, now here negative direction of x axis, upward direction positive, downward direction negative, okay। Angle start होगा positive direction of x axis 0, then 90 degree और pi by 2, then direction clockwise anti clockwise direction पे positive angles, anti clockwise direction एंटी क्लॉकवाइज, ओके, डायरेक्शन पे पॉजिटिव एंगल्स एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नेगेटिव एंगल्स, डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद ASTC रूल, इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने ASTC रूल, ये फॉर साइन कन्वेंशन, ASTC रूल, डायरेक्शन 0, अब 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट माइनस 30 डिग्री इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो ASTC रूल, ये भी ध्यान से देखो। देन राइट हैंड साइड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। अब एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, क्योंकि पॉइंट नंबर 7 हमारा इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। जीरो से तो स्टार्ट, ये स्टार्ट यहीं से होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 0 एक्सिस पे, उसके बाद 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, 0 90 डिग्री, देन अगेन 180 डिग्री प्लस और पाई रेडियन, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन 270 डिग्री और 3 पाई बाय 2 रेडियन एंड लास्ट 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री, 0 to 360 डिग्री। अब इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री यहाँ पे आपके सामने एंगल्स दिख रहे हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अगेन इन टर्म्स ऑफ रेडियन, 0 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, पाई रेडियन, इसका पोजीशन हमें ध्यान में आना चाहिए, 0 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, पाई रेडियन, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे 3 पाई बाय 2 रेडियन एंड अगेन 2 पाई रेडियन इन कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, डिग्री एंड रेडियन कंफर्म। 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री टू 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री टू 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 डिग्री टू 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद देखो ASTC रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ASTC रूल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टमैटिक डिस्कस किया कि ASTC रूल का काम क्या है। ये सिर्फ साइन डिसाइड करने के लिए ASTC रूल अप्लाई होता है, ओके। तो ASTC रूल, उसके बाद निगेटिव एंगल्स, वो भी हमने अभी देखी, निगेटिव एंगल, बट निगेटिव एंगल्स का डायरेक्शन कहाँ पे होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे निगेटिव एंगल्स होंगे, ओके। एंड पॉजिटिव एंगल्स
ये एंटी क्लॉकवाइज पे, क्लियर। अब इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 एंगल्स देखो 0 डिग्री, उसके बाद पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय, हाँ रेडियन में देखते हैं, ओके। तो यहाँ 0 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, 0 पाई बाय 2 अगेन पाई, डिग्री भी देखते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, देन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, one complete revolution 0 to 360 degree, again degree and then radian is 0 radian, then pi by 2 radian, then pi radian, then 3 pi by 2 radian, 3 pi by 2 radian and 2 pi radian, okay, degree and radian, clear। अब ये इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 0, 90, 180, 270 एंड 360, ये सभी एंगल्स कहाँ पे, एक्सिस पे, एक तो एक्स एक्सिस अदरवाइज वाई एक्सिस पे, ओके। देन एक्स एक्सिस, अब स्पेशली एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस इन वन रिवॉल्यूशन एक्स एक्सिस पे एंगल हमें दिख रहे हैं 0, उसके बाद पाई, उसके बाद 2 पाई, ओके। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एंगल्स पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 इन कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अब एक्स एक्सिस पे ध्यान देना हमें, एक्स एक्सिस 0 पाई 2 पाई, फिर से यहां जो ये पोजीशन पे एंगल रहेगा इज 3 पाई, ओके। नाउ हियर 4 पाई, एक्सिस एक्स एक्सिस, दिस वन इक्वल्स टू 5 पाई, अगेन 6 पाई, देन 7 पाई, 8 पाई, then 9 pi and 10 pi and up to so on, clear। अब x एक्सिस पे जितने भी एंगल्स है ये एनी मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड या तो फिर इवन, राइट हैंड साइड पे यानी पॉजिटिव डायरेक्शन पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड लेफ्ट हैंड साइड में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी एक्सिस एक्स एक्सिस तो एनी मल्टीपल ऑफ पाई, तो आपको एक्सिस आपका फिक्स होगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल्स होंगे दैट इज, हाँ यहीं पे मैं आपको समझाता हूं कि एक्स एक्सिस एनी मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एक्सिस एक्स एक्सिस, ओके। देन वाई एक्सिस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, देन यहाँ पे अगेन 5 पाई बाय 2, क्या होगा 5 पाई बाय 2, ओके। 5 पाई बाय 2 प्लस पाई, क्योंकि डिफरेंस जो होता है ये पाई का डिफरेंस क्या होगा, पाई रेडियन, ओके। 5 पाई बाय 2, देन अगेन 7 पाई बाय 2, 7 pi by 2 plus pi, 9 pi by 2, okay, 9 pi by 2, again 11 pi by 2, 13 pi by 2, 13 pi by 2, 15 pi by 2, 15 pi by 2 and up to so on। Now here 15 pi by 2 up to so on। अब यहाँ पे y एक्सिस पे देखो जो भी एंगल्स हमने यहाँ पे लिखे, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2, 11 pi by 2, 13 pi by 2 and last 15 pi by 2 and up to so on। Now these are the odd multiple of pi by 2, now these are odd multiple of pi by 2, यानी odd multiple of pi by 2 जितने भी एंगल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, y एक्सिस पे, कहाँ पे होंगे, y एक्सिस पे, यानी इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, एक्सिस एक्स एक्सिस, इवन मल्टीपल ऑफ पाई या तो फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एक्सिस एक्स एक्सिस, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, जितने भी एंगल्स होंगे उसका एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होगा, एंड any odd multiple of pi by 2, any odd multiple of pi by 2, axis y axis, axis y axis। देखो अब यहाँ से इन डिफरेंस नंबर ऑफ एंगल्स बनते हैं इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और pi by 2। फिर से देखो यहाँ पे any multiple of pi, any multiple of pi, then axis x axis, उसका axis x axis, okay, and any odd multiple of pi, multiple of pi by 2, any odd multiple of pi by 2, axis y axis, axis y, यानी आपको एक्सिस क्लियर होगा कि एक्स एक्सिस हमें सपोज डिसाइड करना है एंगल देखने के बाद, बट वो एंगल्स हो गए इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। एक्स एक्सिस यानी कोई भी
मल्टीपल ऑफ पाई जहां पे दिखता है हमें एंगल पाई इक्वल्स टू 180 रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन, अगेन पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? तो एक्स एक्सिस पे एंगल्स जो रहेंगे वो एनी मल्टीपल ऑफ पाई, 3 पाई, 2 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड अप टू सो ऑन, ऑड मल्टीपल या तो फिर इवन मल्टीपल। बट वाई एक्सिस पे जो एंगल्स हमारे सामने आने वाले वो ओनली एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। फॉर एग्जांपल देन 9 पाई तो एक्सिस एक्स एक्सिस, 9 पाई एक्सिस एक्स एक्सिस, बट 27 पाई बाय 2, 27 पाई बाय 2 ये एंगल हमेशा वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस। ओके, अब एक्सिस तो फिक्स हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक्सिस पे दो डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, यानी राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। ओके, वो भी देखते हैं हम। अपर ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। ओके, अब एक्स एक्सिस का एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव, एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, देन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बट यहां वाई एक्सिस का जो रोल रहेगा, वाई एक्सिस का, ओके पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं हम। अब विथ रेशो साइन कॉस, देन साइन 0, sin 0 equals to 0, sin 0 equals to 0. Now therefore again sin pi equals to 0 and sin 2 pi equals to 0, sin 2 pi equals to 0. यानी x एक्सिस पे जितने भी एंगल्स होंगे, x एक्सिस पे जितने भी एंगल्स होंगे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई अप टू सो ऑन, दैट इज मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई विथ साइन रेशियो, वो सभी का आंसर 0 ही होगा, वो सभी का आंसर 0, बट विथ साइन रेशियो, क्योंकि 0 है न्यूट्रल है इसलिए प्लस 0 या माइनस 0 हम नहीं लिखते। तो विथ साइन रेशियो एनी मल्टीपल ऑफ पाई, एंगल एनी मल्टीपल ऑफ पाई, आंसर हमारा 0 होगा। नाउ देयरफॉर साइन 0 इक्वल्स टू 0 तो साइन पाई इक्वल्स टू 0, 0 का पोजीशन है राइट हैंड साइड में, पाई लेफ्ट हैंड साइड में, अगेन 2 पाई राइट हैंड साइड में, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड अप टू सो ऑन। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, दैट इज एनी मल्टीपल ऑफ पाई एक्सिस इज एक्स एक्सिस, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, इसलिए साइन 0 इक्वल्स टू 0, sin pi equals to 0 and up to this one equals to, now therefore sin 7 pi, sin 7 pi का भी आंसर क्या होगा 0, then sin 192 pi तो आंसर इज 0, आंसर इज 0। अब देखते हैं कॉस रेशियो, यहाँ पे साइन एंड कॉस को हमें देखना है, साइन एंड कॉस, आगे फिर tan cot तो बाय यूजिंग रिलेशन, बाय यूजिंग रिलेशन। तो साइन रेशियो, अब कॉस रेशियो cos 0 इक्वल्स टू, या तो फिर डिग्री या रेडियन कोई भी हम लिख सकते हैं, cos 0 इक्वल्स टू 1। अब cos 0 इक्वल्स टू 1 तो cos पाई कितना होगा -1, क्योंकि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू सो ऑन, यानी मल्टीपल ऑफ पाई सभी एंगल्स कहाँ पे एक्सिस पे, और एक्सिस पे जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी का वैल्यू सेम होता है, बट पॉजिटिव डायरेक्शन पे +1 एंड नेगेटिव डायरेक्शन पे -1। क्लियर? तो cos 0 इक्वल्स टू 1, यहां देखो cos 0 यानी 0 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन, बट cos 0 इक्वल्स टू 1 स्टैंडर्ड एंगल में ये वैल्यू हमारे पास रेडी है, तो cos 0 इक्वल्स टू 1, नाउ देयरफॉर cos pi इक्वल्स टू -1, cos 2 pi इक्वल्स टू अगेन 1, cos 3 pi इक्वल्स टू -1, cos 4 pi इक्वल्स टू 1। तो cos 0 इज 1 ये वैल्यू, उसके बाद जितने भी एंगल्स होंगे एक्स एक्सिस पे, तो cos ऑफ एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आंसर इज 1, cos of any even multiple of pi answer is 1 and cos of any odd multiple of pi answer is -1. Okay, so cos 0 equals to 1, now therefore cos pi equals to -1 and cos 2 pi equals to again 1. Now therefore cos of even multiple, even multiple of pi answer is 1 and cos of odd multiple
odd multiple of pi, answer is minus 1. हमेशा ध्यान में रखना है. Sin of any multiple of pi, answer is 0. Sin of any multiple of pi, answer is 0, and cos of even multiple of pi, answer is 1, and cos of odd multiple of pi, answer is minus 1. Clear? For example, now therefore cos of 19 pi equals to minus 1, then cos of then 44 pi, cos 44 pi, answer क्या होगा 1, and up to so on. Cos of even multiple of pi, answer is 1, and cos of odd multiple of pi, answer is minus 1, and sin of any multiple of pi, sin of even रहो या odd रहो, sin of any multiple of pi, answer is 0. क्लियर? ये सभी एंगल्स कहाँ पे? x एक्सिस पे. x एक्सिस फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन, ये हमें ध्यान में रखना है. ओके, उसके बाद y एक्सिस. उसके बाद y एक्सिस पे देखो नंबर ऑफ एंगल्स. x एक्सिस ये विद साइन कॉस रेशियो है तो एकदम सिंपल है. Then sin of any multiple of pi, answer is 0, and cos of even multiple of pi, answer is 1, and cos of odd multiple of pi, answer is minus 1. Pi equals to 180 degree, pi radian equals to 180 degree. Okay, ये रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, डिग्री टू रेडियन. Then 1 degree equals to pi by 180 radian, and 1 radian equals to 180 by pi degree. Clear? But now यहाँ ओके, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री. ओके, नाउ देयरफॉर पाई रेडियन इक्वल्स टू पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये पॉइंट हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया, तो ये सभी वैल्यूज हमारे सामने रेडी है. बट अब प्रैक्टिस करना हमें रेडियन का. ओके, डिग्री तो हमें पता है, बट अब प्रैक्टिस होना चाहिए एंगल्स इन रेडियन. ओके, 0 डिग्री 0 रेडियन, पाई बाय 2 90 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन. ओके, ये फॉर्मेट. अब y एक्सिस पे देखो नंबर ऑफ एंगल्स. y एक्सिस अगेन y एक्सिस, नंबर ऑफ एंगल्स हो गए y एक्सिस पे. स्टार्ट होता है पाई बाय 2, देन 3 पाई बाय 2, देन 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, अगेन 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, एंड 15 पाई बाय 2, एंड अप टू सो ऑन. अब डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव. बट सपोज लार्ज एंगल हमारे सामने होगा तो हम उसका डायरेक्शन कैसा चेक करेंगे, वो भी हम टेक्निक देखने वाले अभी. ओके, जैसा फॉर एग्जांपल 509. बट यहाँ कंफर्म ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जितने भी एंगल्स हो गए, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, वो सभी एंगल्स कहाँ पे होंगे? y एक्सिस पे. ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री या तो फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी जितने भी एंगल्स अब y एक्सिस पे होगी तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, odd multiple of pi by 2 रेडियन और 90 डिग्री, कोई भी एंगल. सपोज 990 डिग्री हमें चेक करना है, इसका एक्सिस क्या है? 990 डिग्री. दिस वन इक्वल्स टू 11 into 90 डिग्री और 11 पाई बाय 2, तो y एक्सिस पे ही होगा. बट और भी आगे चेक करना है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड पे, पॉजिटिव डायरेक्शन पे या निगेटिव डायरेक्शन पे. ओके, तो ये पहला पॉइंट कंफर्म हुआ कि ऑड मल्टीपल ऑफ, ये फर्स्ट पॉइंट, that is the odd multiple of any odd multiple of pi by 2 axis y axis, any odd multiple of pi by 2 axis y axis. number of angles देखो आपके सामने, ये y axis pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 जैसा डिग्री में 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री. ओके, एनी मल्टीपल ऑफ एनी इन डिफरेंस ऑफ यहाँ पे 180 डिग्री या तो फिर पाई, ये सभी एंगल कहाँ पे? y एक्सिस पे. क्लियर? अब 509 पाई बाय 2, 509 पाई बाय 2, ये भी कहाँ पे होगा हमारा? y एक्सिस पे. बट पाई बाय 2 का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, 3 पाई बाय 2 का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगेन 5 बाय 2 अपवर्ड यानी पॉजिटिव, ये नेगेटिव. बट ये हम इतना काउंट नहीं कर सकते कि 509 पाई बाय 2 का डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है. क्लियर? क्योंकि विथ साइन रेशियो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है. विथ कॉस रेशियो सभी का आंसर 0, विथ कॉस रेशियो सभी का आंसर 0. तो cos of any odd multiple of pi by 2, answer is 0. cos of any multiple, पहले cos को कर लेते हैं, यानी साइड में रहेगा, तो cos of any odd multiple of pi by 2, cos of any odd multiple of pi by 2, बिंदास आंसर 0. cos of any odd multiple of pi by 2, answer is 0. now therefore cos pi by 2 equals to, again cos pi by 2, cos pi by 2 equals to 0, cos 3 pi by 2, cos 3 pi by 2 equals to 0,
and up to so on. Now therefore cos of 79 pi by 2, 79 pi by 2, bindas answer 0, and cos of 101 pi by 2, 101 pi by 2 answer is 0. बट हमें बस इतना ही ध्यान में रखना है, cos of any odd multiple of pi by 2 answer is 0, cos of any odd multiple of pi by 2 answer is 0. जैसा यहाँ पे x एक्सिस के साथ sin of any multiple of pi, any multiple of pi, axis x axis, multiple odd multiple of pi by 2, axis y axis, okay, sin of any multiple of pi answer is 0. वैसे ही यहाँ पे cos of any odd multiple of pi by 2 answer is 0, answer is 0. अब देखते हैं साइन का रोल. अब यहाँ पे साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू ये स्टैंडर्ड एंगल साइन 90 डिग्री और पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1. नाउ देयरफॉर साइन 3 पाई बाई 2 और 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2 और 270 डिग्री आंसर कितना होगा -1. क्योंकि पाई बाई 2 का पोजीशन देखो, पाई बाई 2 अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ओके 90 डिग्री और पाई बाई 2 कहां पे, अपवर्ड डायरेक्शन पे होती है हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन. 270 डिग्री और 3 पाई बाई 2 रेडियन ये कहां पे, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ओके. इसलिए आंसर अपवर्ड में रहा साइन रेशियो का, तो विथ साइन रेशियो तो +1 और डाउन में रहा तो -1, ओके. तो यहां पे भी हम एक रूल बना लेते हैं, दिस वन इक्वल्स टू साइन ऑफ. अब यहां अपवर्ड डायरेक्शन ये तो क्लियर, तो साइन ऑफ एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, देन आंसर 1 और -1. अब दो में से कोई तो भी एक आंसर हो सकता है कंफर्म, क्योंकि साइन ऑफ एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 देन आंसर 1 और -1. तो 1 या -1 यही हमें देखना है. अब देखते हैं यहां पे दिस वन इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1. नाउ देयरफॉर साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू -1. देन साइन 5 पाई बाई 2 ये अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो आंसर इज 1. Now therefore sin 7 pi by 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा -1. अगेन sin 9 pi by 2 इक्वल्स टू 1 एंड sin 11 pi by 2 इक्वल्स टू -1. ठीक है, इतना तो हम याद भी कर सकते, 11 pi by 2 13 15 तक याद रख सकते, ओके. ऐसा काउंट कर सकते. देन pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 7 pi by 2 9 pi by 2 11 pi by 2 13 pi by 2 15 pi by 2 अपवर्ड डायरेक्शन पे पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे निगेटिव. बट आंसर हमेशा 1 और -1 ही होगा, 1 और -1, अपवर्ड 1 डाउनवर्ड -1. बट एंगल हमारे सामने जब ऐसा साइन ऑफ 207 pi by 2, तो इतना तो हम ये काउंट नहीं कर सकते. 207 pi by 2 ऐसा काउंट करते करते हमारा टाइम निकल जाएगा. तो साइन 207 पाई बाई 2. अब इसका आंसर चेक करो आप, 1 है या -1 है, 1 और -, ये तो कंफर्म. साइन ऑफ एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आंसर 1 और -1. ऐसे हम 5 क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं. साइन ऑफ अब 205 बट ए कंफर्म ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इसका आंसर क्या होगा. उसके बाद साइन 19 पाई बाई 2, इसका पोजिशन कहाँ पे होगा. अगेन साइन ऑफ 37 पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या होगा. अगेन साइन ऑफ 109 पाई बाई 2, इसका आंसर क्या होगा. क्लियर. अब इसके लिए भी एक छोटा सा रूल हमें ध्यान में रखना है. साइन 207, सर यहाँ तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, बट इसका डायरेक्शन हम डिसाइड हमें करना है, तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल हमें याद रखना है, ओके. वो रूल देखो क्या है. तो बस अब 207 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. अब इसका आंसर 1 है या -1, इसके लिए देखो ये जो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जो भी होगा इससे 1 सब्सट्रैक्ट करना है, देन डिवाइडेड बाय 2, जो आंसर रहेगा. नाउ 206 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर इज 103. बस ये चेक करना है हमें, जो ये आंसर आएगा एक तो इवन रहेगा या तो फिर ऑड रहेगा, इवन रहेगा या तो फिर ऑड रहेगा.
ये आंसर इवन होगा तो हमारा फाइनल आंसर इज 1। और ये जो प्रोसेस जो हम कर रहे हैं देन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर ऑड आता है तो हमारा आंसर -1, हमारा आंसर -1। तो नाउ हियर 207 -1 डिवाइडेड बाय 2, तो 206 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 103, बट 103 इज एन ऑड नंबर, 103 इज एन ऑड नंबर, तो आंसर 1 रहेगा या -1 रहेगा, आप चेक करो। मैंने इसके पहले ही बताया ये प्रोसेस में हमारा आंसर इवन आता है तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे 1, क्योंकि आंसर 1 और -1 दो ही रहेगी। साइन ऑफ एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है हमारे पास, आंसर 1 और -1, आंसर 1 और -1। बट 207 पाई बाय 2 का आंसर 1 है या -1, ये बेसिक सा एक टेस्ट, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा -1, ये आंसर रॉन्ग होगा, रॉन्ग है नहीं, इसका राइट आंसर एक ही होगा, क्योंकि दोनों आंसर यहाँ पे नहीं हो सकते, तो ये आंसर हमारा राइट। सेकेंड क्वेश्चन, अब फिर से सेकेंड देखते हैं हम। देन 205 दिस ऑड मल्टीपल ऑफ, फिर से 205 -1, 204 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 102, इसका आंसर देन 102 ऑड या इवन, हम साइड में करते हैं। देखो 205 -1 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर होगा 102, बट 102 इज इवन नंबर, 102 इज इवन नंबर, तो आंसर 1 और -1, आंसर क्या होगा 1। ऐसा ओरली हमें ये आंसर्स फाइंड करते आना चाहिए, कोई भी लार्ज नंबर, बट वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 या तो फिर 90 डिग्री, तो हमारे आंसर्स ऐसे फाइंड होना चाहिए। अब 19 पाई बाय 2, 19 -1, अब ओरली आप फाइंड कर सकते हो, नहीं तो काउंट करना होगा हमें। देखो 19, पहले इसका आंसर बाय यूजिंग दिस टेस्ट, हाँ, या तो फिर रूल, बेसिक रूल ये करते हैं। 19 -1 18, 18 बाय 2 9, बट 9 इज ऑड नंबर, तो आंसर इज -1, आंसर इज -1। 37 पाई बाय 2, 37 मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 37, 37 -1 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 18, 18 इज एन इवन नंबर, तो आंसर क्या होगा +1। 109 पाई बाय 2, अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 109 -1 108 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा 54, 54 इज अगेन इवन नंबर, तो आंसर इज 1, आंसर इज 1। ओके, अब साइन सिंपल सा लेते हैं, 11 पाई बाय 2, साइन 11 पाई बाय 2 इक्वल्स टू 11 -1 10, 10 बाय 2 5, 5 इज ऑड नंबर, तो आंसर क्या होगा -1, आंसर क्या होगा -1। अब हम बाय यूजिंग एक्चुअल डायग्राम इसको भी चेक करते हैं, इसका पोजीशन 11 पाई बाय 2 कहां पे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। 11 पाई बाय 2 कहां पे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, इसलिए y एक्सिस पे होगा बट डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए इसका आंसर -1। ये हम काउंट करते बट इतना टाइम इसमें तो काउंट करते करते टाइम निकल जाएगा, तो बट ये इसका आंसर -2। अब 19 तक हम कर सकते हैं, 19 पाई बाय 2 भी कितना आया -पाई बाय 2, ये दोनों भी डाउनवर्ड पे होंगे। देखो आप ये डायग्राम में ध्यान से देखो, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, कहां पे गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, इसलिए साइन 11 पाई बाय 2 का आंसर -1। बट हमने तो अलग से रूल बना दिया, वो रूल से हमें करना है। 13 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2 15, 17 पाई बाय 2, 19 पाई बाय 2, फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, इसलिए साइन 19 पाई बाय 2 का भी आंसर, साइन 19 पाई बाय 2 का भी आंसर क्या हुआ -1। अब ये काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा जो रूल मैंने बताया, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, वो भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, उससे 1 माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 2, आंसर सपोज इवन आता है तो हमारा फाइनल आंसर विथ साइन रेशो आंसर इज 1, और हमारा प्रोसेस का आंसर ऑड नंबर आता है तो हमारा आंसर -1, आंसर क्या होगा -1। और भी एक क्वेश्चन करते हैं हम, और बाद में देखो आप साइन 37 पाई, अब ध्यान से देखो ये है मल्टीपल ऑफ पाई विथ साइन रेशियो हमेशा क्या आता है 0, देन कॉस ऑफ 29 पाई इसका आंसर, बट कॉस रेशियो, बट इवन मल्टीपल, ये 29 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, आंसर क्या होगा -1 क्योंकि निगेटिव, देन कॉस ऑफ देन 34 पाई, तो आंसर देन इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि cos 0 एक ही वैल्यू हमें याद रखना है, cos 0 1 होती, बाकी सभी वैल्यू अब 1 या तो फिर -1 ऐसे ही वैल्यूज आने वाले विथ कॉस रेशियो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1 एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1। ओके, अब ऑड इवन का तो यहाँ पे आंसर इज 1 और सभी वैल्यू। और एक बात ध्यान में आपको रखना है कि -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा,
लेस देन और इक्वल टू 1, हमेशा साइन एंड कॉस विथ एनी एंगल, साइन एंड कॉस विथ एनी एंगल always lies in between -1 to 1 including -1 and 1, कोई भी एंगल। बट यहाँ जो एंगल्स है इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2, ये सभी एंगल्स कहाँ पे, एक्सिस पे, एक्स एक्सिस या तो फिर वाई एक्सिस। यहाँ इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 में ये आंसर हमेशा एक तो 0 आंसर्स हमेशा, देन आंसर्स हमेशा 0 और 1 और -1, ये तीन ही आंसर्स यहां पे आ सकते हैं। बट एंगल इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री विथ रेशो साइन कॉस tan हमेशा, बट विथ रेशोज, विथ रेशोज साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस। बाकी तो फिर tan cot sec को तो रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, वो आप दिमाग में डालना ही नहीं, ओनली साइन एंड कॉस, ये दो रेशो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। बाकी tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, cot equals to cos upon sin, sec is the reciprocal of cos and cosec is the reciprocal of sin, okay? बट पहले तो sin cos ये है हमारा इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, ओके? पहला फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, ओके, निगेटिव एंगल्स, यानी फर्स्ट 5 पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में पूरे डिस्कस किए थे, ओके, पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद आज हमने स्टार्ट किया पॉइंट नंबर 6, निगेटिव एंगल्स दैट इज माइनस थीटा। बट एक सिंपल सा रूल हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, निगेटिव एंगल्स ओनली cos and sec are positive and others are negative, clear? Then next in difference of 90 degree with the trigonometric ratios, but यहाँ sin and cos ratios हमने की, बाकी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो x एक्सिस अब इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2, ये सभी एंगल जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स होंगे वो कहाँ पे होते हैं, एक्सिस पे, x एक्सिस या तो फिर y एक्सिस, ओके? एक्सिस पे मल्टीपल ऑफ पाई जितने भी एंगल्स होंगे वो x एक्सिस पे होंगे, एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जितने भी एंगल्स होंगे वो कहाँ पे होते हैं, y एक्सिस पे, कहाँ पे होंगे, y एक्सिस पे। तो विथ रेशियो साइन 0 0 है तो साइन पाई इक्वल्स टू 0, साइन 2 पाई इक्वल्स टू 0। एक सिंपल सा रूल हमने बना लिया, साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई आंसर इज 0, साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई आंसर इज 0, एंड कॉस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई आंसर इज 1, एंड कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आंसर इज -1। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। उसके बाद y एक्सिस पे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होंगे, ओके? ये सभी एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, उसका एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस। बट एक्सिस यहाँ पे y एक्सिस पे अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव, उसका टेस्ट कैसा करना हम अब ये पहले तो विथ रेशियो ठीक है, बट अब कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 75 पाई बाय 2, इसका एक्सिस यहाँ पे आपने तो ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो एक्सिस y एक्सिस, बट y एक्सिस में भी पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है, इसके लिए बेसिक टेस्ट कैसा करना है मैंने आपको बताया, ये मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 देन 75, ओके? ध्यान से देखो, देन सब्सट्रैक्ट 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ जब इवन होगा तो पॉजिटिव एंड ऑड होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन, ऑड होगा तो नेगेटिव। बट सभी में आंसर एक तो 1 और -1, यहाँ पे 0 कॉस रेशो के साथ तो ये 0 ही रहेगा, कॉस ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आंसर, एनी मल्टीपल यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आंसर इज 0, बट साइन के लिए यहाँ पे +1 या तो फिर -1। तो ये टेस्ट 70 कितना होगा, 74 -1, 74 डिवाइडेड बाय 1 देन 35 37। अब देखो ये ऑड है, इसलिए विथ साइन रेशो इसका आंसर, कॉस रेशो के साथ तो आंसर इज 0, कॉस रेशो के साथ कॉस ऑफ 75 पाई बाय 2 इक्वल्स टू 0, इसलिए हमने यहाँ पे एक रूल लिखा, तो cos ऑफ एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आंसर इज 0, बट साइन ए ऐसे सभी आंसर 0, बट साइन पाई बाय 2 दिस वन इक्वल्स टू 3, ओके? साइन ऑफ एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आंसर 1 और -1, आंसर क्या होगा, 1 और -1, ये दो में से एक आंसर होगा। 1 कब होगा, जब प्रोसेस में दैट इज द मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर इवन आता है तो हमारा फाइनल आंसर विथ साइन रेशो इज 1 एंड ऑड आता है तो आंसर इज -1। देखो यहाँ पे सभी क्वेश्चन हमने सिस्टमेटिक ये प्रोसेस से आपको बताया, तो ये हमारा इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2। अब 2-3 क्वेश्चन हम नेगेटिव एंगल्स के साथ भी ले लेते हैं, जैसा साइन ऑफ -990 डिग्री, ओके? ऐसा एंगल आपके सामने आता है तो सबसे पहला काम तो हमें रूल नेगेटिव एंगल का अप्लाई करना होगा। देन नेगेटिव एंगल्स ओनली cos and sec are positive and others are negative,
then equals to sin of minus theta equals to minus sin of 990 degree, 990 degree. But again 990 degree, ये multiple of 90 degree है, multiple of 90 degree. Again this one minus sin of, again we can write this one equals to 11 into 90 degree, 11 into 90 degree or equals to minus sin of 11 pi by 2, 11 pi by 2. एक बार प्रैक्टिस होने के बाद तो आप ओरली 11 पाई बाय 2, क्योंकि 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन, ये माइनस बाहर कैसे आए कि रूल साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. अब ये बन गया हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी 990 डिग्री कंफर्म कहां पे, वाई एक्सिस पे, कंफर्म कहां पे, वाई एक्सिस पे. बट वाई एक्सिस में भी अपवर्ड डायरेक्शन पे है या डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, क्योंकि उससे हमारा साइन डिसाइड होगा +1 या -1. कंफर्म इसका आंसर एक तो 1 रहेगा या तो फिर -1, बट हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए 1 या तो फिर -1. ये कैसे फाइंड करना है, मैंने अभी अभी आपको एक रूल बताया, उसी से आप, यानी ये तो ठीक है आप काउंट भी कर सकते हैं, बट लार्ज एंगल होगा देन 11 - 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 5. 5 इज ऑड नंबर. नाउ देयरफॉर द साइन ऑफ 11 पाई बाय 2, ये तो माइनस ऑलरेडी बाहर है, देन इक्वल्स टू -1. नाउ देयरफॉर साइन ऑफ -990 डिग्री इक्वल्स टू 1. ओके, ऐसा निगेटिव का पहले इफेक्ट होगा, उसके बाद ये इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 ये एंगल्स ये अप्लाई होंगे. और भी एक क्वेश्चन लेते हैं. ओके, उसके बाद दिस वन इक्वल्स टू सपोज साइन ऑफ -1890 डिग्री. ठीक है, आप ये एंगल देख के डर जाते हो, अरे सर ये एंगल, बट ये कंफर्म, पहले तो सबसे पहला काम तो ये नेगेटिव एंगल का रूल हमें अप्लाई करना होगा. दिस इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस साइन थीटा, बट थीटा इज 1890, देन इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ 21 पाई बाय 2. कितना होगा ये, 21 पाई बाय 2 90 डिग्री इंटू 20 प्लस अगेन दिस वन इक्वल्स टू 21 into 90 degree. 21 into 90 degree is 1890 degree. So sin of 1890 again 21 pi by 2. Again 21 is an odd number. So process 21 minus 1 divided by 2. Answer is 20 divided by 2 equals to 10. But 10 is an even number. Now therefore 10 is an even number. Now therefore sin of 21 pi by 2. Answer क्या होगा इसका आंसर, ये तो माइनस ऑलरेडी बाहर है. Now therefore sin of minus 1890 degree आंसर क्या होगा -1. इतने फार हमें ये करते आना चाहिए. बट ये पॉइंट्स ओनली फॉर द एंगल्स, वो कहाँ पे होंगे हमारे x एक्सिस एंड y एक्सिस. क्लियर, इसलिए इसका नाम हमने दिया इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2. ओके, बट साइन एंड कॉस रेशो के साथ ही हमें ये ध्यान में रखना है. बाकी अदर रेशोज के साथ आता है तो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है हमारा रिलेशन बिटवीन देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. क्लियर, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं. अब ये पॉइंट दोनों भी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव एंगल्स ओके ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो दिखने में कैसे होते हैं इन टर्म्स ऑफ माइनस थीटा. एंड हमारा पॉइंट नंबर 7 देन द एंगल्स विथ रेशोज, एंगल्स बट वो एक्सिस पे इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन. ओके, विथ रेशो साइन एंड कॉस. ओके, तो ऐसे एंगल बस ये इसी पे ध्यान देना है हमें, x एक्सिस y एक्सिस. ओके, x एक्सिस पे एंगल्स यानी मल्टीपल ऑफ 180 या तो फिर मल्टीपल ऑफ पाई एक्सिस x एक्सिस. ऑड मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कभी नहीं होगा. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एक्सिस y एक्सिस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एक्सिस y एक्सिस. क्लियर, तो साइन एंड कॉस इतना सिंपल है कि साइन 0 0 तो साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई आंसर इज 0. उसके बाद cos 0 1, cos पाई -1, cos 2 पाई अगेन 1 3 पाई. बट यहाँ पे एक रूल हमें ध्यान में रखना है, cos ऑफ एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आंसर इज 1 एंड cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आंसर इज -1. साइन cos को ही ध्यान में रखो. उसके बाद y एक्सिस पे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ही होगा. देन cos ऑफ एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बिंदास आंसर 0. बट साइन के लिए हमें चेक करना होगा जो टेस्ट मैंने अभी समझाया, साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. ओके, बट उसके बाद जो भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो आंसर 1 या तो फिर -1. वो हमें बेसिक एक टेस्ट से
फाइंड करना होगा। जो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है उससे 1 सब्सट्रैक्ट एंड डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद हमारा आंसर इवन आता है, तो फाइनल आंसर हमारा 1 एंड ऑड यानी जो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 उसका आंसर ऑड आता है, तो आंसर इज -1। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने अभी समझाया, बस वो फॉर्मेट से हमें ध्यान में रखना है। तो ये जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स हो गए इन डिफरेंस ऑफ 92 और पाई बाई 2 विद साइन एंड कॉस रेशो, सभी का आंसर हम ओरली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पॉइंट लेने वाले, पॉइंट नंबर 8, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, वो दिखने में कैसे होते हैं अलाइड एंगल, क्योंकि अब तक तो हमने स्टैंडर्ड एंगल्स हमें पता है, नेगेटिव एंगल्स, हाँ माइनस थीटा ये एंगल, ये नेगेटिव एंगल्स वो कैटेगरी में चला गया। उसके बाद इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाई 2 ये एक्सिस में एंगल्स होते, बट इन बिटवीन भी नंबर ऑफ एंगल्स होगी। ओके, तो जो रहेंगे वो अलाइड एंगल्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा डिटेल में वो पढ़ने वाले। अलाइड एंगल्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके साथ साथ उसको हमारा ASTC रूल भी साथ रहेगा, यानी वो भी इंपॉर्टेंट है, ASTC रूल फॉर साइन कन्वेंशन, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले सबसे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट अलाइड एंगल्स। ओके, तो चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं, तब तक बाय बाय। ओके।